Hey everyone, I hope you all are doing good. So from today we are starting a new playlist that is human physiology. First we will cover all the chapters of human physiology and then we will proceed with another chapters. So our first chapter of human physiology is digestion and absorption, and we will study digestion and absorption through these notes, and in these notes I have covered each and every line of NCERT. No need to worry and no need to read NCERT, just go through these notes. This is sufficient for NEET as well as for boards. If you learn in this way, in which way I am teaching, if you learn in this way, you will be able to solve every question of NEET. And if you need these notes, then comment down below. I will provide you the PDF of the notes. So let's start. डाइजेशन इज कैरिड आउट बाय बोथ, मीन्स डाइजेशन जो है वो किससे, मतलब डाइजेशन में मैकेनिकल प्रोसेस भी होता है, हमारे पास बायोकेमिकल प्रोसेस भी होता है. दो प्रोसेस होते हैं, मैकेनिकल एंड बायोकेमिकल. नेक्स्ट इज ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम इंक्लूड एलिमेंट्री कनाल एंड एसोसिएटेड ग्लैंड्स. एलिमेंट्री कनाल प्लस एसोसिएटेड ग्लैंड्स मिलके क्या बनाते हैं, हमारे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम. नेक्स्ट इज, ये तो हम क्लास 10th 9th 10th में पढ़ते आ रहे हैं ना, ये तो बहुत पुराना चैप्टर है, बस उसको थोड़ा सा डिटेल में यहाँ पे बताया हुआ आपकी इस चैप्टर में. अब हम बात करें एलिमेंट्री कैनाल के फ्लो चार्ट से, तो हम सबको पता है फर्स्टली फूड गोज इनटू माउथ, देन फेरिंग्स, ईसोफेगस, स्टमक, देन स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, देन एनस. एंड स्मॉल इंटेस्टाइन हैव 3 parts, that is duodenum, jejunum and ileum, and large intestine have 3 parts, that is cecum, colon and rectum. Now common passage of food and air, we know na what is the common passage, which is the common passage for food and air. Pharynx is the common passage for food and air both. This is a question, keep this thing in mind. Next is opening of windpipe. We have given name for openings. हमने अलग अलग openings को नाम दिया हुआ है. So windpipe की opening को हम बोलते हैं glottis और food pipe की opening को हम बोलते हैं gullet. Now next is epiglottis, cartilaginous flap which covers glottis during swallowing of food. What is glottis? Glottis is the opening of windpipe. जब आपका मीन्स मैं आपको समझाती हूँ, जैसे ये आपकी क्या है, windpipe है, windpipe है ना. सो क्या होगा जब ना आपका ये होगा windpipe, जब आप फूड खाओगे, जब आप फूड को swallow करोगे तो क्या होगा, आपके इसके ऊपर क्या होता है, कवर होता है, जिसको हमें पता है, हमने क्या नाम दिया हुआ है, जिसको ग्लोटिस नाम दिया हुआ है. ये क्या होता है, कवर होता है, किसके ऊपर, आपकी विंड पाइप के ऊपर ये कवर है. ये इसको कवर करके रखेगा जब आप क्या करोगे, फूड को स्वेलो कर लोगे, ताकि फूड आपका विंड पाइप के अंदर ना चला जाए, वो फूड पाइप के अंदर ही जाए. सबको क्लियर हो गया होगा. इसको क्या बोलते हैं, इस चीज़ को हम बोलते हैं आपका एपिग्लोटिस. Let me change the color. Next is dental form. I will tell you this later on. Next is teeth. So we have 3 different properties of teeth, that is thecodont, diphodont and heterodont. Thecodont, diphodont and heterodont. Thecodont means teeth are embedded in the socket of jawbone. We already know this, the teeth are embedded in the socket of jawbone. Next is diphodont, that is comes twice. हम सबको पता है कि हमारे दांत जो है वो 2 times आते हैं. एक बार जब हम छोटे होते हैं तब टूटते हैं ना हमारे दांत, that are temporary teeth. एंड सेकंड वन इज परमानेंट टीथ, जो कि एडल्ट्स में होते हैं. नेक्स्ट आर हेटेरोडोंट, डिफरेंट टाइप्स. हमारे जो दांत हैं वो अलग अलग टाइप के होते हैं, इंसीजर, कैनाइन, प्री मोलर, मोलर. वी हैव 4 types of teeth, that इंसीजर, कैनाइन, प्री मोलर एंड मोलर. नेक्स्ट इज डेंटल फॉर्मूला. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. डेंटल फॉर्मूला फॉर अडल्ट ह्यूमन इज 2123 by 2123. means we have 2 incisor, canine, premolar and molar on the upper side also, on the down side also. Now next is keep this thing also in mind. ये एक बार नीट में आया हुआ क्वेश्चन है कि जो डेंटल फॉर्मूला, मिल्क टीथ का क्या फॉर्मूला होता है. ये आपके एनसीईआरटी में नहीं गिवन है, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैंने यहाँ लिखी हुई है कि आपकी मिल्क टीथ जब होते हैं उनका डेंटल फॉर्मूला होता है 2102. that is 2102. We don't have premolars when we are a child. When we have milk teeth, we don't have premolars. Keep this thing in mind. 2102, 2102. Next is, अब हम आगे बात करें इनामल की, तो इनामल इज हार्ड चूइंग सरफेस ऑफ टीथ. एमियोब्लास्ट सेल सिक्रेटेड. इनामल जो है वो कौन बनाता है, एमियोब्लास्ट सेल्स होते हैं, वो क्या करते हैं, सिक्रीट करते हैं इनामल. दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, कीप दिस थिंग इन माइंड. नेक्स्ट इज टंग.
अब हम टंग की बात करें तो टंग क्या होती है हमारी, मस्कुलर होती है और फ्रीली मूवेबल, ये तो हमें पता है। अटैच टू फ्लोर ऑफ ओरल कैविटी बाय फ्रेनुलम, जो आपकी टंग आप ऊपर करोगे ना, एक वो मसल सा होगा जिससे टंग आपकी जो है वो नीचे अटैच होगी, उसको क्या बोलते हैं, फ्रेनुलम बोलते हैं। नेक्स्ट हम बात करें, अपर सरफेस है पैपिले, सम ऑफ विच बेयर्स टेस्ट बर्ड्स। जो आपका टंग है उसका जो अपर सरफेस होता है उसके ऊपर क्या होते हैं, पैपिले होते हैं, जिनमें कुछ ऐसे नहीं होता कि जो पैपिले उन सब में क्या होंगे, टेस्ट बर्ड्स होंगे। फ्यू ऑफ देम हैव टेस्ट बर्ड्स। नेक्स्ट इज फिलीफॉर्म पैपिले डोंट हैव टेस्ट बर्ड्स। जो पैपिले उसके टाइप है, जो फिलीफॉर्म पैपिले होता है ना उसके पास क्या होता है, टेस्ट बर्ड्स नहीं होते हैं। जो फोलिएट पैपिला होता है ना वो डीजनरेट कर जाता है जब आप बड़े हो जाते हो। जो फोलिएट पैपिला होता है ना वो डीजनरेट कर जाता है जब आप बड़े होते हो। कीप दिस थिंग माइंड कि मतलब जो आप जब बेबी होते हो तब फोलिएट पैपिला आप में प्रेजेंट होता है, लेकिन जब आप बड़े होते हो तो फोलिएट जो पैपिला वो डीजनरेट कर जाता है और फिलीफॉर्म पैपिले के पास टेस्ट बर्ड्स नहीं होते हैं। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे स्टमक की। तो स्टमक में क्या होता है, आपकी स्टमक की शेप होती है जे शेप्ड। पार्ट्स इसके कौन कौन है, फंडस, कार्डियक, बॉडी, पाइलोरिक। फंडस, कार्डियक, बॉडी, पाइलोरिक। इसका डायग्राम एनसीईआरटी में दिया हुआ है, उसको जरूर देखें। नेक्स्ट ग्लैंड्स की बात करें तो इसके पास क्या होता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं। स्टोरेज ऑफ फूड, ये 4 से 5 घंटे फूड को स्टोर करता है। मस्कुलर मूवमेंट, इसमें चर्निंग मूवमेंट होती है। इसमें कौन सी मूवमेंट होती है, चर्निंग मूवमेंट होती है, याद रखेंगे। और क्या होता है, फंडस में आपका क्या, जो फंडस पार्ट है ना उसमें आपके क्या होते हैं, चीफ सेल्स प्रेजेंट होते हैं। उसमें क्या होते हैं, एक सेल्स होते हैं जिनको क्या बोलते हैं, चीफ सेल्स प्रेजेंट होते हैं किसमें, आपके फंडस में। इस चीज़ का मतलब है प्रेजेंट। अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस देखी हुई है तो मैंने हर वीडियो में बताया इस चीज़ का मतलब प्रेजेंट होता है और इस चीज़ का मतलब एब्सेंट होता है। नेक्स्ट हम बात करें, दिस थिंग इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी नीट में पूछा गया क्वेश्चन है, PYQ। दिस इज PYQ। डेंटल फॉर्मूला फॉर 17 ईयर्स, जो 17 ईयर्स होते हैं मतलब कि एडोलिसेंट ह्यूमन, जो एडोलसेंस के एज में होते हैं उन ह्यूमंस में जो डेंटल फॉर्मूला वो क्या होता है, डेट इज 2122, डेट इज 2122। एंड व्हाट इज द डेंटल फॉर्मूला फॉर द एडल्ट ह्यूमन, डेट इज 2123। एंड व्हाट इज द डेंटल फॉर्मूला ऑफ मिल्क टी, डेट इज 2102। सो आपने सभी डेंटल फॉर्मूला पढ़ लिए यहाँ पे। अब नेक्स्ट हम बात करें तो स्टेज ऑफ फूड, जो स्टमक है उसमें फूड की स्टेज कैसी होती है, डेट इज काइम। और स्पिंस्टर, इसमें कौन सा होता है, गैस्ट्रो इसोफेगस स्पिंस्टर होता है एक, और एक पाइलोरिक स्पिंस्टर होता है विद ड्यूडेनम, पाइलोरिक विद ड्यूडेनम। स्पिंस्टर याद रखना कि गैस्ट्रो इसोफेगस स्पिंस्टर होता है और एक पाइलोरिक विद ड्यूडेनम। मीन्स कि यहाँ पे आपकी ईसोफेगस है ना, ईसोफेगस से आपका स्टमक हो रहा है ना, तो इसको क्या बोलते हैं, गैस्ट्रो ईसोफेगल स्पिंस्टर। और यहाँ से पाइलोरिक आपकी आगे जाके किससे जुड़ेगी, स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम पार्ट से। तो इस चीज़ को क्या बोलते हैं, पाइलोरिक विद ड्यूडेनम स्पिंस्टर, इसको बोलते हैं गैस्ट्रो ईसोफेगल स्पिंस्टर। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन की। सो स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होते हैं, ड्यूडेनम, जेजुनोइलियम। ड्यूडेनम आपका C शेप का होता है, जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है वही मैंने यहाँ लिखा हुआ है। ब्रूनर्स ग्लैंड इज प्रेजेंट इन सब म्यूकोसा। इसमें क्या होता है, ये म्यूकोसा क्या है, सब म्यूकोसा क्या है, मैं आपको आगे बताती हूँ। लेकिन याद रखना कि ब्रूनर्स ग्लैंड कहाँ होता है, प्रेजेंट होता है सब म्यूकोसा में, कहाँ पे, ड्यूडेनम में। नेक्स्ट है कि सिक्रीटिन एंड कोलियोसाइटोकाइनिन, दीज हार्मोन सिक्रीटेड वाइट। ये याद रखना कि ड्यूडेनम कौन कौन से हार्मोन सिक्रीट करता है, तो ड्यूडेनम ये वाले हार्मोन्स आपके सिक्रीट करता है। नेक्स्ट हम बात करें जेजुनम की, तो वो लॉन्ग कॉइल्ड होती है, इलियम आपकी हाईली कॉइल्ड होती है। बस इतना सा डेटा आपका लिखा हुआ है एनसीईआरटी में। नेक्स्ट है लार्ज इंटेस्टाइन की बात करें तो केकम, कॉलन, रेक्टम। केकम आपका ब्लाइंड सैक होता है, होस्ट करता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये याद रखना कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहाँ पे होते हैं, तो केकम में होते हैं आपके। वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स होता है इसमें, वेस्टिजियल ऑर्गन है जो एक हम सबको पता है। कॉलन की बात करें तो इसके 4 पार्ट होते हैं, असेंडिंग, ट्रांसवर्स, डिसेंडिंग एंड सिग्मोइड। असेंडिंग ट्रांसफर से इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये असेंडिंग ऐसे जाती है, पहले ऊपर को जा रही है, फिर ट्रांसवर्स गई, फिर डिसेंड हुई, फिर ऐसे होगी। सिग्मोइड का मतलब ऐसे एस शेप की होगी। ये क्या हुआ आपका असेंडिंग, ये क्या हुआ आपका ट्रांसवर्स, ये किसके पार्ट है, कॉलन के। ये क्या हो गया आपका डिसेंडिंग, और ये आपका जो ये ऐसे शेप का ऐसे बना है ये आपका हो गया सिग्मोइड। यहाँ भी मैंने बनाया हुआ ये। नेक्स्ट हम बात करें रेक्टम की, तो ओपन्स आउट थ्रू एनस। बस आपको केकम का ये याद रखना है इसमें कि होस्ट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड ब्लाइंड सैक इज केकम। नेक्स्ट इज लेयर्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। सो अब एलिमेंट्री कैनाल की हम लेयर्स को पढ़ लेते हैं। जो आपकी ये एलिमेंट्री कैनाल है ना, इसकी लेयर्स को पढ़ेंगे अब। सो एलिमेंट्री कैनाल आपकी ऐसी होती है ना,
क्या बन रहा है, ये आपकी एलिमेंट्री कैनाल, शिट, ऐसे ऐसे आपकी एलिमेंट्री कैनाल होती है। सो ये एलिमेंट्री कैनाल की लेयर्स ऐसी होती हैं अंदर। ये जो आपका सर्कल है ना, ये यहाँ पे ऐसे करके दिखाया हुआ मैंने वैसे यहाँ भी ड्रॉ किया हुआ है ये डायग्राम। यहाँ पे देखो, ये आपकी ऐसी होती है एलिमेंट्री कैनाल। इसको मैंने आगे ऐसे दिखाया हुआ है कि ये ऐसी होती है। इसके ऐसे ऐसे 4 लेयर्स होती हैं। सबसे आउटर जो लेयर होती है उसको बोलते हैं सिरोसा। फिर आपके अंदर ये इसके अंदर जो है इसको बोलते हैं मस्कुलैरिस। ये है सिरोसा, ये है मस्कुलैरिस, ये है आपकी सब म्यूकोसा, और सबसे अंदर वाली आपकी होती है म्यूकोसा। अंदर क्या है, म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, मस्कुलैरिस एंड सिरोसा। 4 layers आर इन एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल हैव 4 layers, सिरोसा, मस्कुलैरिस, सब म्यूकोसा एंड म्यूकोसा. Now we will study about one by one about these layers. Firstly, serosa, outermost layer made up of mesothelium and connective tissue. Muscularis formed by smooth muscles, inner circular muscles, outer longitudinal muscle. Inner side muscularis circular muscle से बनी होती है, outer side muscularis आपकी longitudinal muscle से बनी होती है. नेक्स्ट हम बात करें सबम्यूकोसा की, तो कंटेन नर्व, ब्लड वेसल्स, लिम्फ वेसल्स. इन ड्यूडेनम ग्लैंड्स आर ऑल्सो प्रेजेंट इन सब म्यूकोसा. मैंने आपको बताया ड्यूडेनम में क्या होता है, ब्रूनर्स ग्लैंड प्रेजेंट होता है सब म्यूकोसा में. तो नर्व्स होती है, इसमें ब्लड वेसल्स होती है, लिम्फ वेसल्स होती है आपकी सब म्यूकोसा में. म्यूकोसा की बात करें तो फॉर्म्स लाइनिंग ऑफ ल्यूमन ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, फॉर्म्स रूगे इन स्टमक, फॉर्म्स विलाई इन स्मॉल इंटेस्टाइन. म्यूकोसा आपकी लाइनिंग फॉर्म करती है एलिमेंट्री कैनाल की, फॉर्म्स रूगे बनाती है स्टमक में, और विलाई बनाती है आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में. ये मैं आपको समझाती हूँ क्या होता है. जैसे कि आपकी ये सब म्यूकोसा लेयर है, तो इसमें ये वाली जो लेयर है ना, ये वाली, ये रूगे बनाती है. ऐसे रूगे का मतलब है कि ऐसे इनफोल्डिंग्स हो जाती हैं, ऐसे ऐसे रूगे स्ट्रक्चर है, ये रूगे स्ट्रक्चर होता है. और ये वाले हमारे विलाय होते हैं. अब इधर से लेके इधर तक आपका स्टमक का रीजन आ गया, यहाँ से लेके यहाँ तक आपका स्मॉल इंटेस्टाइन का रीजन आ गया. अब स्टमक वाले रीजन में क्या बने हैं, रूगे बने हुए हैं, छोटे छोटे फोल्डिंग्स जो हैं, ये जो हैं इधर से लेके इधर तक, मान लो ये स्टमक है, और यहाँ से यहाँ तक ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, और ये आपकी क्या म्यूकोसा है. अब म्यूकोसा ऐसे तो यहाँ पे तो सीधी सीधी जा रही थी, लेकिन जैसे वो स्टमक रीजन में पहुँची वो कैसी होगी, ऐसी ऐसी. सो ये क्या बना दिए इसने, यहाँ पे रूगे बना दिए. अब नेक्स्ट हम बात करें स्मॉल इंटेस्टाइन की, तो वही म्यूकोसा स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके आगे ऐसे ऐसे फोल्डिंग्स, बड़ी बड़ी फोल्डिंग्स कर दी, उनको हमने क्या बोल दिया, विलाय बोल दिया. अब विलाय के ऊपर क्या होते हैं, माइक्रोविलाय प्रेजेंट होते हैं, ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन ये मैंने बनाई हुई है जो, ये आपके माइक्रोविलाय प्रेजेंट होते हैं. अब नेक्स्ट हम बात करें तो आपकी जो ये विलाय है, cells lining the villi produce small projections called microvilli which gives brush border appearance. मैंने आपको समझा दिया. नेक्स्ट हम बात करें तो ब्लड कैपिलरीज प्लस लिम्फ वेसल्स इसमें प्रेजेंट होती हैं विलाई में, आर प्रेजेंट विच इज़ लार्ज कॉल्ड लैक्टियल. क्या होता है, विलाई में आपकी ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट होती है और लिम्फ वेसल्स भी प्रेजेंट होती है. जो बड़ी लिम्फ वेसल होती है उसको क्या बोलते हैं, लैक्टियल. कीप दिस थिंग इन माइंड. अब आपकी जो यहाँ पे ये जो स्पेस बच रहा है ना, ये जो स्पेस बच रहा है, इसको हम बोलते हैं क्रिप्स ऑफ लिबरकहन. क्रिप्स ऑफ लाइबरकहन क्या बोलते हैं इसको, क्रिप्स ऑफ लाइबरकहन, जो विलाई के साइड में ये पोर्शन में जो स्पेस बची हुई है. इसमें क्रिप्स ऑफ लिबरकहन में क्या होता है, पेनीज सेल सिक्रीट लाइजोजाइम. इसमें क्या होता है, आपके पेनीज सेल्स होते हैं जो कि सिक्रीट करते हैं लाइजोजाइम. लिबरकहन के जो स्पेसेस बने हुए हैं यहाँ पे क्या होते हैं, वो होते हैं पेनीज सेल्स होते हैं जो सिक्रीट करते हैं लाइजोजाइम को. नेक्स्ट हम बात करें सलाइवरी ग्लैंड्स के बारे में. अब हमने क्या कर लिया, ग्लैंड्स पे आ गए, अब हम ग्लैंड्स को पढ़ेंगे. सो मैं देख लेती हूँ पहले कितना बड़ा है, बहुत बड़ा चैप्टर है यार. चलिए अच्छा फटाफट सलाइवरी ग्लैंड्स देख लेते हैं. तो पैराटोइड, सब मैक्सिलरी, सब लिंगुअल, 3 टाइप के सलाइवरी ग्लैंड होते हैं, पैराटोइड, सब मैक्सिलरी एंड सब लिंगुअल. सब लिंगुअल का तो आपको खुद ही पता लग रहा है, लिंगुअल मीन्स लैंग्वेज, लैंग्वेज मीन्स लैंग्वेज किससे बोलते हैं हम, टंग से. तो ये कहाँ होते हैं, बिलो टंग. सब मैक्सिलरी का बात करें तो बिलो जो होते हैं, और पैराटोइड आपकी चीक्स के पास प्रेजेंट होते हैं. ये याद रखना कि पैराटोइड जो होता है ग्लैंड, उसके पास कौन सा डक्ट होता है, स्टीनसन्स डक्ट. स्टीनसन्स डक्ट इज प्रेजेंट इन पैराटोइड ग्लैंड, पैराटोइड रीजन. सब मैक्सिलरी की हम बात करें तो इसके पास होता है वॉटन्स डक्ट. और इसकी बात करें सब लिंगुअल की, किसके पास होता है, डक्ट ऑफ रैविनस. ये एक्स्ट्रा है, ये एनसीईआरटी में नहीं है. ये वाली चीज़ एनसीईआरटी में नहीं गिवन है, तो इसको माइंड में रखना. चीक्स में क्या होता है, स्टीनसन डक्ट, इसमें क्या होता है, वॉटन्स डक्ट, इसमें होता है डक्ट ऑफ रैविनस.
ये PYQ है, बॉटम डक्ट पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट बात करें लीवर की, तो लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ बॉडी, वेट 1.2 to 1.5 kg, सिचुएटेड जस्ट बिलो द डायफ्राम इन एब्डोमिनल कैविटी। डायफ्राम के नीचे एब्डोमिनल कैविटी में बिलो प्रेजेंट होता है आपका लीवर। नेक्स्ट हम बात करें लीवर कंटेन 2 लोब्स, कंटेन्स हैप्टिक। जो लीवर की 2 लोब्स होती हैं उनके अंदर क्या होते हैं, हिपैटिक लोब्यूल्स होते हैं। हिपैटिक लोब्यूल्स के अंदर होते हैं आपकी हिपैटिक सेल्स। हिपैटिक सेल्स क्या करते हैं, सिक्रीट बाइल, और वो स्टोर का होता है गॉल ब्लैडर। ईजी ना। लीवर कंटेन 2 लोब्स, 2 lobes contain hepatic lobules, contain hepatic cells secrete bile stored in gallbladder। नेक्स्ट हम बात करें तो ये भी याद रखना कि एंजियोटेंसाइनोजन इज अ प्रोटीन प्रोड्यूस्ड एंड सिक्रेटेड बाय लिवर सेल्स। दिस इज इंपॉर्टेंट थिंग कि जो एक एंजियोटेंसाइनोजन एक प्रोटीन है जो कि प्रोड्यूस और सिक्रेट करता है आपके लीवर सेल्स। एंजियोटेंसिनोजन इज अ प्रोटीन प्रोड्यूस्ड एंड सिक्रेटेड बाय लिवर सेल्स। नेक्स्ट इज हिपैटिक लोब्यूल्स की बात करें, जो यहाँ पे हमने पढ़े या हिपैटिक लोब्यूल्स क्या हो गया, ये जो हिपैटिक लोब्यूल्स हमने यहाँ पढ़े उनकी बात करें तो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लीवर इज हिपैटिक लोब्यूल्स। पूछ सकता है नीट में वो आपसे कि स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट कौन होता है लीवर का, तो आंसर इज हिपैटिक लोब्यूल। कवर्ड बाय कनेक्टिव टिश्यू शीथ कॉल्ड ग्लीसन्स कैप्सूल। हिपैटिक लोब्यूल इज कवर्ड बाय अ कनेक्टिव टिश्यू शीथ विच इज कॉल्ड ग्लीसन्स कैप्सूल। ग्लीसन्स जो कैप्सूल है वो कवर करते हैं आपके हिपैटिक लोब्यूल्स को, ये भी इंपॉर्टेंट। अब हम आ गए हैं कन्फ्यूजन ऑफ गॉल ब्लैडर, लीवर, पैनक्रियास, ड्यूडेनम। अब यहाँ पे ना ध्यान से सुनना, ये एक डायग्राम के थ्रू मैंने पूरा एक्सप्लेन किया हुआ, ज़रूर समझ में आएगा, बस ध्यान से मुझे सुनना ही है आपने। इसमें आपको सभी स्पिंस्टर्स के बारे में पता चल जाएगा। आपका यहाँ पे है गॉल ब्लैडर, यहाँ पे आपका लीवर, मतलब लीवर के अंदर ही आपका गॉल ब्लैडर होता है, अलग अलग दिखाया हुआ बस। अब आपका जो गॉल ब्लैडर है उससे क्या आ रही है आपकी सिस्टिक डक्ट आ रही है, और जो आपका लीवर है उससे क्या आ रही है कॉमन हिपैटिक डक्ट आ रही है। याद रखना गॉल ब्लैडर से क्या आती है सिस्टिक डक्ट, और लीवर से आपकी आती है कॉमन हिपैटिक डक्ट। तो ये दोनों क्या हो रही है यहाँ पे ज्वाइन हो जा रही है, ये यहाँ से आ रही है, यहाँ से हो रही है, दोनों मिल गई एक बन गई। इसको क्या बोलेंगे हम, इसको क्या बोलेंगे, यहाँ पे हम इसको बोलेंगे कॉमन बाइल डक्ट। क्या बोलेंगे इसको, कॉमन बाइल डक्ट। नेक्स्ट हम बात करें तो यहाँ पे आपकी होती है नीचे पैनक्रियास। अब पैनक्रियास से ये वाली जो निकल रही है इसको क्या बोलेंगे पैनक्रियाटिक डक्ट। अब पैनक्रियाटिक डक्ट जब आपका इस कॉमन बाइल डक्ट से जुड़ रहा है ना, कहाँ पे जुड़ रहा है, ये यहाँ पे इस रीजन में आपका जो पैनक्रियाटिक डक्ट है वो इसके साथ क्या हो जा रहा है, इसका मिक्स हो जाएगा ना, जो भी ये प्रोड्यूस करेगा। तो जब यहाँ पे ये आ रहा है तो इसको क्या बोलते हैं स्पिंस्टर ऑफ बायोडॉन, मतलब कि इनके बीच में क्या होगा एक स्पिंस्टर प्रेजेंट होगा ना। ये यहाँ पे कॉमन बाइल डक्ट है आपकी, और यहाँ पे आपका क्या है ये, वेट लेट मी चेंज द कलर, ये आपका जो यहाँ पे है ये क्या है पैनक्रियाज है यहाँ से। तो इनके बीच में कुछ होगा ना जो इनको अलग अलग करेगा पैनक्रियाटिक डक्ट को और कॉमन बाइल डक्ट को। तो इस चीज़ को क्या बोलते हैं, इस चीज़ को हम बोलते हैं स्पिंस्टर ऑफ बॉयडन। इस चीज़ को क्या बोलते हैं स्पिंस्टर ऑफ बॉयडन। कीप दिस थिंग इन माइंड, इस चीज़ को हम बोलते हैं स्पिंस्टर ऑफ बॉयडन, जो इनको डिफ्रेंशिएट करता है स्पिंस्टर ऑफ बॉयडन। आपको डायग्राम के थ्रू ये इजीली समझ में आएगा। तो ये आपका लर्निंग वाला ही पोर्शन है कि आपको माइंड में रखना है कि पैनक्रियास के बीच में और कॉमन बाइल डक्ट के बीच में कौन सा स्पिंस्टर होता है, वो होता है स्पिंस्टर ऑफ बॉयडन। नेक्स्ट हम बात करें तो अब क्या हुआ, अब क्या होगा आपका ये जो है ये तो इसके साथ मिक्स हो गया ना, कॉमन बाइल डक्ट में आ जाएगा पैनक्रियाटिक जूस और कॉमन बाइल डक्ट का वो सारा मिक्स हो गया, अब तो एक ही हो गया ये। तो ये क्या बना देगा अब हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट। यहाँ तक क्या था ये, एक बार फिर से बताते हैं आपका, ये यहाँ तक पता क्या था, यहाँ तक ये आपका था कॉमन बाइल डक्ट। नेक्स्ट इसके साथ क्या होगा, यहाँ पे इसका पैनक्रियाटिक डक्ट का भी जो भी निकलता है, जो भी सिक्रीशन है वो भी मिक्स होगी। तो इसको क्या नाम दे दिया फिर यहाँ से हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट। क्या, हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट। अब हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट और ड्यूडेनम के बीच में भी तो एक स्पिंस्टर होगा, ये आगे किससे जाके जुड़ रहे हैं ड्यूडेनम से। ड्यूडेनम किसका पार्ट है, स्मॉल इंटेस्टाइन का। सो यहाँ पे भी आपका एक क्या होगा स्पिंस्टर प्रेजेंट होगा ऐसे, यहाँ पे आपका एक स्पिंस्टर प्रेजेंट होगा जो इनको डिफ्रेंशिएट करेगा। तो ये स्पिंस्टर को हम क्या बोलते हैं स्पिंस्टर ऑफ ओडाई या ओडी, ओडाई भी बोल सकते हैं, ओडी बोल सकते हैं, स्पिंस्टर ऑफ ओडाई इसको बोलते हैं हम। स्पिंस्टर ऑफ ओडाई ये याद रखना है कि किनके बीच में होता है, तो स्पिंस्टर ऑफ ओडाई इज प्रेजेंट बिटवीन ड्यूडेनम एंड हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट एंड स्पिंस्टर ऑफ बॉयडन इज प्रेजेंट बिटवीन कॉमन बाइल डक्ट एंड पैनक्रियाटिक डक्ट। सिंपल, इजी, इजी पीजी।
लर्न हो गया। नेक्स्ट हम बात करें हिपैटोपैनक्रियाटिक डक्ट ओपन्स इनटू, जो आपका हिपैटोपैनक्रियाटिक डक्ट है वो कहाँ पे ओपन होता है, स्पिंचर ऑफ बॉयडन वर्सेस स्पिंचर ऑफ ओडाई। सो अब हम इनको मतलब कंपैरिजन के बेसिस पे देखते हैं। गार्ड्स ओपनिंग ऑफ पैनक्रियाटिक डक्ट इनटू कॉमन बाइल डक्ट, समझा दिया मैंने आपको पहले कि पैनक्रियाटिक डक्ट और कॉमन बाइल डक्ट के बीच में जो स्पिंचर है वो पैनक्रियाटिक डक्ट के बीच में कौन सा है, स्पिंचर ऑफ बॉयडन। और ओपनिंग ऑफ हिपैटोपैनक्रियाटिक डक्ट इन ड्यूटेनम भी मैंने आपको समझा दिया, स्पिंचर ऑफ ओडियाई इज प्रेजेंट बिटवीन ड्यूटेनम एंड हिपैटोपैनक्रियाटिक डक्ट। नेक्स्ट हम बात करें गैस्ट्रिक जूस के अंदर इन्फेंट्स के लाइपेज होता है और रेनिन होता है और पेप्सिनोजन होता है। अब नेक्स्ट है फूड। फूड जो है वो माउथ मैस्टिकेशन बाय टीथ, मतलब जब हम फूड खाते हैं तो उसको चबाता हुआ ना टीथ से बातें, मैस्टिकेशन का प्रोसेस होता है। फिर जो मैस्टिकेटेड फूड होता है वो मिक्स होता है हमारे सलाइवा के साथ, हमारे माउथ के अंदर जो सलाइवा होता है उसके साथ वो मिक्स होता है। फिर क्या बनता है उसका, बोलस। हमारे माउथ में फूड का क्या बन जाता है, बोलस। फिर बोलस को हम स्वेलो करते हैं या फिर उसको क्या बोलते हैं, डीग्लटेशन। बोलस को हमने स्वेलो किया, सो वो बोलस ही बना रहा। बोलस कहाँ गया आपका, बोलस के रूप में ही वो कहाँ गया आपके ईसोफेगस में, इन फेरिंग्स देन ईसोफेगस। फिर जो आपका बोलस है ईसोफेगस में उसकी क्या होती है, पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट होती है। ये याद रखना है कि ईसोफेगस में फूड की जो बोलस है उसकी कैसी मूवमेंट होती है, पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट होती है। फिर पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट के बाद क्या होता है, आपका जो बोलस है वो कहाँ पहुँच जाता है, स्टमक में पहुँच जाता है। फिर स्टमक में क्या होता है, चर्निंग मूवमेंट होती है। फिर चर्निंग मूवमेंट से आपका वो जो बोलस है वो क्या बन जाता है, काइम। और जो ये काइम है ये हमारे जो स्टमक है उसमें स्टोर रहता है। वो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि जो आपका फूड है वो स्टमक में काइम के फॉर्म में स्टोर रहता है। नेक्स्ट हम बात करें व्हाट इज डाइजेशन स्टार्ट इन माउथ। वी ऑल नो डाइजेशन स्टार्ट इन माउथ एंड एंड इन स्मॉल इंटेस्टाइन। कीप दिस थिंग इन माइंड, डाइजेशन डजंट एंड इन लार्ज इंटेस्टाइन, डाइजेशन कंप्लीट इन स्मॉल इंटेस्टाइन। Next is gastric glands. Gastric glands are of 3 types: mucous neck cells और goblet cells. Mucous neck cells का दूसरा नाम है goblet cells. Peptic cells का दूसरा नाम है chief cells, parietal cells और oxyntic cells. Mucous neck cells release mucus. Peptic cells secrete pepsinogen and आपका जो ऑक्सीडेटिव सेल्स हैं वो सिक्रेट करते हैं आपके HCl इंट्रिंसिक फैक्टर्स। अब जो आपका पेप्सिनोजन है वो आपका पेप्सिन जो है वो जो आपका पेप्सिनोजन है ना वो इनएक्टिव फॉर्म है पेप्सिन की। ये एक्टिव कब होता है, ये एक एसिडिक पीएच पे क्या होता है, एक्टिव होता है। पेप्सिनोजन से इन हाई पीएच में किस में कन्वर्ट हो जाता है, पेप्सिन, जो कि क्या एक्टिव फॉर्म है। नेक्स्ट हम बात करें इंट्रिंसिक फैक्टर कहता है विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन कराते हैं। ये इंपॉर्टेंट है कि इंट्रिंसिक फैक्टर्स जो हैं वो विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन करते हैं। और कैसल्स इंट्रिंसिक फैक्टर है जो कि क्या कहता है, B12 के एब्जॉर्प्शन। इंट्रिंसिक फैक्टर तो है लेकिन जो कैसल्स इंट्रिंसिक फैक्टर है पर्टिकुलरली जो कैसल्स इंट्रिंसिक फैक्टर है वो करता है आपकी विटामिन B12 की एब्जॉर्प्शन। सो यहाँ तक पढ़ते हैं आज। नेक्स्ट पार्ट 2 में हम कवर करेंगे आपका ये सारे इंजाइम्स वगैरह कि किस में कौन सा इंजाइम होता है, कौन कौन सा इंजाइम रिलीज़ करता है, और आगे टिल एंड तक हम पार्ट 2 में कवर करेंगे क्योंकि फिर वीडियो बहुत जल्दी लंबी हो जाती है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसी तरह से पढ़ते रहिए। कीप स्टडिंग, ऑल द बेस्ट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक रह गया, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। ये तो आप सबको बताइए, आप कर ही दोगे। लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। कीप स्टडिंग।